Okay, good evening all of you once again. I hope all of you are doing great. Today we'll discuss chapter number 8, the last chapter of strategic management. Again, a very interesting chapter, but from exam point of view, again the same weightage of 7 to 8 marks on a higher side. So as of now, till chapter number 7, हम लोगों ने what is the concept of strategic management? How do you analyze your existing position of a company? That means your situation analysis कैसे perform करते हैं. फिर sir, how do we design our strategic vision, mission, goals and objectives? Then we talked about different strategic alternatives at a corporate level, business level and function level strategies. Then we did discuss in detail about strategy implementation. That means what kind of different leadership styles can be required under different requirements. Then what are different types of organization structure? Can a corporate culture be a friend or it can be an enemy when it comes to strategy implementation? तो strategy implementation के बारे में थोड़ा discussion chapter number 7 के अंदर हुआ था. Chapter number 8, if you really ask me, is little bit about implementation more, and then eventually it's about evaluation. That means जो strategy को आपने implement किया है उसे आपको regularly evaluate भी करना पड़ेगा. So there is a concept called as strategic control. How do you control an overall strategy environment in the organization? There is something called as benchmarking. How do you keep improving your existing business performance in different sectors? Then there is something called as business process re-engineering. That means maybe existing process को redesign करने का जरूरत है, radical तरीके से नया तरीके से business को डिजाइन करके execute करने का जरूरत होगा, तो BPR करके concept रहेगा. Then we have something called as strategic decision making. मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज, अगर आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में कुछ बदलाव लेकर के आना है, इफ यू वांट टू ब्रिंग एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी, तो व्हाट ऑल स्टेप्स यू शुड कीप इन माइंड और व्हाट ऑल precautions you need to keep in mind while bringing a new strategic change in the organization, वो discuss करेंगे. Then maybe at a later stage what is strategy audit, difference between formulation and implementation. तो ये काफी detailed chapter है, chapter number 8 according to me. So after chapter number 2 जो सबसे detailed chapter है वो chapter number 8 है. Should we get started guys? So हम पहले important जो exam point of view से काफी important है उनको individually discuss करना शुरू करेंगे, and then we shall go to the general part. Should we get started? Okay, let's go to chapter number 8. So in your modules, come to page number. So if you ask me, this chapter the best part is majority important concepts जो है ना वो individually अपने आप में segregated है, तो हर एक concept को अलग अलग तरीके से focus करते जाएंगे. पूरे chapter का relevance एक last में आपको समझ में आएगा. पहले कुछ important चीजों को देखते हैं, like for example benchmarking is an important concept. Then we have a business process re-engineering concept. But today we're gonna start with strategic change. Come to page number 157. We'll start with strategic change first. So what is strategic change? पहले वो discuss करेंगे. Talking about the word strategic change, it means to say that normally in a business organization, once you design a strategy, once you implement a strategy, उस existing strategy में बदलाव लेकर के आना, it's not an easy decision. Rather, reversing your entire decision or maybe bringing any change in the existing strategy, it's not an easy task for a company. तो normally क्या-क्या steps आपको दिमाग में रखने चाहिए अगर आप एक company के अंदर strategically बदलाव लेकर के आना चाहते हैं? तो can we say it's not going to be easy job? We need to understand how do we really implement in different phases any significant changes in the existing strategy. So can you see, strategic change is a complex process. It involves corporate strategy focused on new markets, new products, new services or new ways of doing business. So it's not going to be easy job. Some people are not going to like it, but some of them are really going to support you significantly. So how do you step by step initiate a strategic change in an organization? Beta, from exam point of view there is a problem. स्ट्रेटेजिक चेंज में उन्होंने ना दो अलग अलग चीजों को मेंशन किया है. एक ना कर्ट लुइन एक बहुत फेमस स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने प्रपोज किया कि अगर आप चाहते हो कि कोई बदलाव जो लेके आओ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए, तो उसके लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. तो कर्ट लुइन का जो प्रोसेस है वो अलग से दिया आपके सिलेबस में. मैं नहीं बोलूंगा कि ये प्रोसेस जो नॉर्मल स्ट्रेटजी चेंज के स्टेप्स हैं उनसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल ही रिलेटेड है 100%. बट क्या होता है ना, हेडिंग्स एंड द चॉइस ऑफ वर्ड्स वो अलग है. तो आप कंफ्यूज क्या हो सकते हो, इन एग्जाम देयर इज अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रेटेजिक चेंज, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? सुनो, देयर कैन बी 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. 1 स्पेसिफिकली पूछेगा एज पर कर्ट लुइन नॉर्मली स्ट्रेटेजिक चेंज के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको सिर्फ ये A B C अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग
जो 3 स्टेप्स है ये लिखने पड़ेंगे अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया कर्ट लुईन के ऊपर। नहीं सर कर्ट लुईन पे क्वेश्चन नहीं आया, जनरल क्वेश्चन आ गया कि नॉर्मली क्या क्या स्टेप्स दिमाग में रखने पड़ेंगे टू इनिशिएट अ स्ट्रेटेजिक चेंज। अगर इनिशिएट अ स्ट्रेटेजिक चेंज वर्ड आ जाए तो आपका आंसर आएगा ये 3 स्टेप्स 1 2 3 जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पर अगर सर बहुत ही जनरल क्वेश्चन आया कि नॉर्मली स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है एंड नॉर्मली क्या क्या चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए, तो शायद आपको दोनों के दोनों लिखने पड़ सकते हैं। आई विल शो यू ऑल्सो वन जनरल क्वेश्चन व्हाट आई से हैज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो May 18 से लेकर के May 18, नवंबर 18, May 19, नवंबर 19, ऑल 4 अटेम्प्ट्स, हर चारों अटेम्प्ट के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। और यस ये क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक चेंज भी पूछा गया है, कैसे पूछा गया, कैसे आंसर लिखा है, सब बताऊंगा। डोंट वरी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिक चेंज को इनिशिएट करने के लिए क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। टॉकिंग अबाउट नॉर्मल स्टेप्स इन्वॉल्वड इन इनिशिएटिंग अ स्ट्रेटेजिक चेंज, फर्स्ट स्टेप देखो क्या बोलता है, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर चेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब व्हाई डू वी नीड अ चेंज, वेयर डू वी नीड अ चेंज, ये रिकॉग्नाइज करना सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। फॉर दिस आई टेल यू व्हाट, सरप्राइज चेक जो कंपनी के अंदर चलते रहेंगे या मे बी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस और ऑन अ मंथली बेसिस हम जो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है उसे इवैल्यूएट करते रहेंगे तो हमको समझ में आएगा मे बी कुछ स्ट्रेटजीज के अंदर बहुत ज्यादा लूप होल्स है या यू कैन से वेरिएशंस आ रहे हैं प्रैक्टिकलिटी के अंदर, तो शायद हमको वहां पे चेंजेस इनिशिएट करना जरूरी बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 इज यू हैव टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ चेंज, दैट व्हाई डू वी नीड अ चेंज एंड वेयर डू वी नीड अ चेंज। कैन यू सी द फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नाइज व्हिच फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड व्हिच आर नॉट। मतलब क्या चीजें सपोर्ट कर रही है, क्या सपोर्ट नहीं कर रही है। दिस बेसिकली मींस गोइंग फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग थ्रू स्वॉट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाइंग कि सर कहां लकूनालाइज मतलब क्या प्रॉब्लम है और कहां स्कोप है कि हमें एक चेंज लेकर के आना चाहिए। दैट मींस आइडेंटिफाइंग वेयर डू वी नीड द चेंज एंड व्हाट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ चेंज वी नीड। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 इज, अब आपको समझ में आ गया टॉप लेवल मैनेजमेंट, दैट लेट्स से मे बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम ग्रेट काम नहीं कर रहे, मे बी लेट्स से मार्केटिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सो मे बी कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो हमने एक डेडलॉक को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रॉब्लम आपने ढूंढा है जहां आपको लगता है स्ट्रेटेजिक चेंज को इंप्लीमेंट करना है वो चीज बाकी लोगों ने भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज। अगर आप चाहते हो कि जो भी बदलाव आप एक कंपनी के अंदर लेकर के आओगे, प्रोसेस में लेके आओगे, उसको लोग एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें, तो आपको ना उन एम्प्लॉइज को जो लोग इस चेंज का पार्ट बनने वाले हैं उन सबको ये रियलाइज करवाना पड़ेगा कि ये चेंज का इंपॉर्टेंस क्या है, मेकिंग देम अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चेंज, सो दैट एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो दैट इट्स नॉट दैट मैनेजमेंट वांट्स अ चेंज, इट्स बेसिकली द एंटायर कंपनी, एवरीवन इन द कंपनी बिलीव्स अ चेंज इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। उसको बोलते हैं शेयर्ड विजन क्रिएट करना, नॉट विजन शेयर। तो देखो, objectives and vision of both individuals and organization should coincide, there should not be any conflict between them. So sir, senior managers ने constantly and consistent तरीके से communicate करते रहना चाहिए। विजन ऐसा नहीं कि हमारा विजन ये है, बेसिकली हम सब क्या अचीव करना चाहते हैं, हम सब ने ये चीज के पीछे क्यों जाना है, तो एक शेयर्ड विजन टाइप का सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए ताकि लोग जब चेंज को इंप्लीमेंट किया जाएगा उसको आसानी से एक्नॉलेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड स्टेप इज इंस्टीट्यूशनलाइज अ चेंज। जो एग्जैक्टली बदलाव आपको लेकर के आना है उसे इंप्लीमेंट करो। ये एक्शन स्टेज है जहां पर आप एक इंप्लीमेंटेशन करोगे, जो एग्जैक्टली चेंज आपको लेकर आना है, प्रोसेस बदलना है, नया सॉफ्टवेयर लेकर के आना है, मे बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नया अप्रोच लेकर के आना है, तो व्हाटएवर यू बिलीव इन उसको आप इंप्लीमेंट करोगे। देखो जरा ध्यान से, creating and sustaining a different attitude towards change is essential to ensure that the firm does not slip back into old ways of thinking. You have to be a little strict compulsorily at the initial level because some people will not like change, but you need to maintain that kind of attitude where everyone starts acknowledging that yes, this change is good for the organization, and if everyone starts believing in that, it's going to be really, really helpful according to me. So that is called as institutionalizing the change. So simple 3 steps हैं। पहले recognizing the need, why do we need a change? नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक शेयर्ड विजन क्रिएट करना पड़ेगा वेयर एवरीवन बिलीव्स दैट यस दिस चेंज इज इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन you know that is action plan, bring in the change culture, you implement that and ensure that ये सस्टेनेबल तरीके से आगे लॉन्ग टर्म में काम कर पाए और हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो गोल्स है उसको हम आसानी से अचीव कर पाए। ये बेसिक जो 3 स्टेप्स होते हैं नॉर्मली, हाउ डू यू इनिशिएट अ स्ट्रेटेजिक चेंज, उसके 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ यू टू स्पेंड 2 minutes, रीड ऑल दीस 3 पॉइंट्स। डोंट वरी बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तीनों हेडिंग आनी चाहिए,
चाहिए और तीनों के बारे में एटलीस्ट आपने एक एक लाइन या दो दो लाइन इतना भी पार्ट लिख लिया, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज कोई भी सजेस्टेड आंसर में इसके डिटेल में उन्होंने आंसर नहीं दिया है, बिकॉज द एग्जाम क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑन अ हायर साइड 4 और 5 मार्क्स। क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स, जल्दी से तीनों पॉइंट को पढ़ो, फिर हम जाएंगे कर्ट लुईन ने क्या चीज प्रपोज किया था कि कैसे आप स्ट्रेटेजिक चेंज को एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। क्विकली रीड दीस 2 पॉइंट्स, देन वी शैल प्रोसीड। पढ़ा आपने? लेट्स गो नेक्स्ट। कर्ट लुईन ने जो प्रोसेस प्रपोज किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एज पर कर्ट लुईन उन्होंने 3 अलग अलग फेजेस बताए। अगर आप चाहते हो जो भी बदलाव आप लेकर के आ रहे हो कंपनी में, वो सर ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट से फ्यूचर तक बहुत अच्छे से लेके जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो सर उसके लिए कर्ट लुईन ने 3 अलग अलग फेजेस बताए। पहला फेज बोलता है वो अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, और मैंने आपको इसके लिए एक बहुत क्लासिक एग्जांपल दिया था दैट लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज वर्किंग विद डेलॉइट, entity in the Hyderabad, they were planning to change the office location. And when you are making such a big change, maybe a lot of employees were extremely comfortable with the existing location. And if the location is like, let's say, really distant from the existing location, in our case, it was not that distant comparatively. It was pretty close by. But let's say if the location is on the other side of the city altogether, people are not going to accept this kind of change also. So basically, unfreezing the situation मतलब एक इनफॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक रूमर फैला दो, इस तरीके से उसको कम्युनिकेट करो दैट एवरीवन इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ चेंज बिफोर द चेंज इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड। मतलब लोग कम्युनिकेट करें उसके पहले इनडायरेक्टली इनफॉर्मल तरीके से लोगों के दिमाग में चीज डाल दो कि हाँ शायद ऐसा बदलाव आ सकता है। सो वंस पीपल आर मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट अ पर्टिकुलर चेंज, दे आर नॉट गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू इट इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे। वो एक नेगेटिव वे जो है वो खत्म हो जाएगा और एक पॉजिटिव तरीके से लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसीलिए ऐसा बोलते हैं इनडायरेक्टली कि आपको पहले अनफ्रीज करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सिचुएशन। देखो, द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग मेक्स सिंपली इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस अवेयर ऑफ necessity for a change and prepares them for such a change। देखो नॉर्मली सिंपल चीज है, कुछ ना कुछ बदलाव जब आप सडनली लेके आते हो, दे कैन बी सोशली डिस्ट्रक्टिव एंड दे कैन रिड्यूस द मॉरल ऑफ योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। तो सर अनफ्रीजिंग करने से मेंबर्स को आसानी से चीजें एक्सेप्ट करना पॉसिबल होगा। आपको एग्जिस्टिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर को ब्रेक करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली अनाउंसमेंट करने के बजाय इनडायरेक्ट तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से ये अनफ्रीज करना चाहिए। अनफ्रीज करने का मतलब क्या है? मेकिंग पीपल मेंटली aware that yes, there can be such situations where there is a change in future and they will become more responsive to acceptance. Number 2 is चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जब धीरे धीरे अनफ्रीजिंग हो चुका है, यू कैन सी मेंटली पीपल आर रियली रेडी एंड देव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग कि हाँ ऐसा बदलाव आ सकता है। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर व्हिच यू आर ब्रिंगिंग इन द कंपनी और द चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द कंपनी और मे बी पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ द टारगेट्स टू बी अचीव्ड। तो अगर आप इनडायरेक्टली उनको मेंटली प्रिपेयर कर चुके हो तो सर नया बदलाव लाना अब आसान हो जाएगा। सो स्टेप नंबर 2 इज कॉल्ड एज चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन। मतलब वंस द अनफ्रीजिंग इज डन, you should go ahead and talk about how do you really actually implement the new pattern। तो सर as per HC Kellen there are 3 methods जिससे आप नई चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहला है कंप्लायंस, मतलब नया प्रोसेस ये है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे यू विल बी पनिश्ड, दैट मींस मे बी यू विल बी फायर्ड और आपका प्रमोशन कैंसिल कर दिया जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो कंप्लायंस एक ऐसा तरीका है जिससे आप इनडायरेक्टली चीजों को फोर्स कर सकते हो कि ये नया बदलाव है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है, देखो हर कंपनी में ना टॉप लेवल के ऊपर, आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियर मैनेजर्स एंड अबव, देयर आर सम पीपल जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो जो लोग है ना, जो इन्फ्लुएंसिव लोग आपकी कंपनी में, उनको आइडेंटिफाई करो एंड उनको कम्युनिकेट करो दैट यू स्टार्ट
यू कैन से यू स्टार्ट प्रेजिंग दैट ये नया जो चेंज आने वाला है या जो नया सॉफ्टवेयर जो नया लोकेशन है वो एक अच्छा चीज है. वंस दे स्टार्ट एक्नॉलेजिंग इट, उनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो भी डायरेक्टली उनको फॉलो करना शुरू कर जाएंगे. दिस मेथड कैन बी कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन, जहां पर आप सही लोगों को आइडेंटिफाई करते हो एंड उनके थ्रू चेंजेस को इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हो. थर्ड ऑप्शन जो मेरे हिसाब से बहुत रेयर है हमारे कंट्री में, इट्स कॉल्ड एज internalization. Let employees, let people themselves realize internally that why do we need a change, how do we need a change, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो internalization कहलाता है. मेरे हिसाब से वो बहुत ही रेयर है. पहले दोनों सबसे कॉमन तरीके. देखो, कंप्लायंस, इट इज अचीव्ड बाय स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटजी. अगर आप फॉलो करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा. आइडेंटिफिकेशन देखो, इट ऑकर्स व्हेन मेंबर्स आर साइकोलॉजिकली इंप्रेस्ड बाय सर्टेन पीपल. उन लोगों को, रोल मॉडल्स को आइडेंटिफाई करो एंड उनके थ्रू अडॉप्ट करके नया बदलाव लेकर के आने का ट्राई करो. इंटरनलाइजेशन बोलता है इंटरनली इंडिविजुअल्स के थॉट्स प्रोसेस को बदलने का टाइम दो. लेट देम रियलाइज दिस ऑन देयर ओन एंड देन मे बी न्यू थिंग्स विल गेट इंप्लीमेंटेड इजीली. दिस इज कॉल्ड एज इंटरनलाइजेशन. तो बेसिकली तीन तरीके, या तो कंप्लायंस, रिवॉर्ड पनिशमेंट स्ट्रेटजी सिंपल सा, या दूसरा आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई दोज रोल मॉडल्स इन द कंपनी जो सर इनडायरेक्टली पुश कर सकते हैं इस नए इंप्लीमेंटेशन को. एंड थर्ड वन इज इंटरनलाइजेशन. लेट पीपल रियलाइज ऑन देयर ओन एंड दे विल एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट सच चेंजेस इजीली. ये तीन तरीके एचसी केलर ने दिए थे व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटिंग द चेंज. सो बेसिकली पहला था अनफ्रीजिंग, दूसरा है changing to new situation, that means implementing the change situation, and the last one is called as refreezing. Nothing much is required. जो नया बदलाव लाया था, now that new is normal. So all of you know that this is new normal. So the same way organization में जो बदलाव आपने लेकर के आए वो अब normal बन जाएगा, लोग उसको accept कर लेंगे, it will become a normal part of life. You will not go back to the old methods at all. So can you see, when the new behavior becomes a normal way of life, eventually पुरानी चीजों को बदल करके नए चीजों को successfully implement कर दिया जाएगा and they'll become permanent in nature. This is called as refreezing. But remember, कोई भी ऐसा change कंपल्सरीली जिंदगी भर सेम रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है. चेंज प्रोसेस इज नॉट वन टाइम एप्लीकेशन, ये एक रेगुलर प्रोसीजर है, बार बार चलते जाएगा. अगर कंपनी को ग्रो करना है, इवॉल्व करना है, एनवायरमेंट से डील करना है, ये बदलाव तो आते ही रहेगा. दैट इज द कंक्लूजन पार्ट. तो ये सबको सब कहलाता है आपका कर्ट लुइन का प्रोसेस. तो एग्जाम में अगर कर्ट लुइन पे क्वेश्चन आया तो स्पेसिफिकली आंसर देना पड़ेगा. हाउ डू यू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंज अगर क्वेश्चन पूछा तो ये तीनों लिखना पड़ेगा. और इन जनरल क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक चेंज, और अगर वो 5-7 मार्क के लिए आ गया तो आपको आइडली पूरा लिख देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, समराइज तरीके से. आई विल शो यू अ क्वेश्चन, यू स्पेंड 5 मिनट्स, रीड दिस एंटायर स्ट्रेटेजिक चेंज वंस अगेन. एक बार वापस इसको पढ़ो, समझो, फिर आपको क्वेश्चन दिखाता हूं एग्जाम का. जल्दी. This question was asked in the November 18 examination. So from May 18 onwards, your new syllabus was implemented. So technically, after the new syllabus, this was the question. Can you see? Write a short note on strategic change and explain the process of strategic change. उसने ये नहीं बोला steps to initiate a strategy change. उसने कर्ट लुइन का कुछ नहीं, उसने जनरल क्वेश्चन पूछा and look at how much marks, 7 marks का क्वेश्चन है. November 18 अटेम्प्ट के अंदर आया था and obviously the answer is going to be everything. Can you see? पहले चेंज का नॉर्मल मतलब क्या होता है, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व. नोटिस करो, देखो कितना छोटा छोटा आंसर है, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है. एंड देन आफ्टर दिस कर्ट लुइन ने 3 स्टेजेस प्रपोज किए थे, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, तीनों चीजें लिखी उसके बारे में, एंड देन द रीफ्रीजिंग पार्ट. यू हैड टू राइट ऑल ऑफ देम टू गेट अ गुड 7 मार्क आउट ऑफ दिस क्वेश्चन. डू यू अंडरस्टैंड गाइस? यस और नो? अच्छा बेटा, होशियारी मत दिखाना कि जो लास्ट 4 अटेम्प्ट के अंदर आया वो कभी नहीं आएगा. मेरे हिसाब से लास्ट 4 अटेम्प्ट में सब कुछ पूछ लिया. स्ट्रेटेजिक चेंज पे क्वेश्चन आ चुका है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पे क्वेश्चन आ चुका है, बीपीआर पे क्वेश्चन आ चुका है, बेंचमार्किंग पे क्वेश्चन आ चुका है, सब पे आ चुका है. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस क्या, वो क्वेश्चन भी आ चुका है. टेक्निकली दे आस्क्ड क्वेश्चन ऑन ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 8. सो समथिंग विल गेट रिपीटेड. इट कैन बी द स्ट्रेटेजिक चेंज, इट कैन बी एनी वन ऑफ देम. तो आपका कर्तव्य बनता है आप सबको अच्छे से पढ़ के जाओ, कुछ भी छोड़ के ना जाओ. समझा क्या? आगे बढ़े? कैन यू गो नेक्स्ट? चलो सेकंड चीज पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. वो काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? देखो 3 चीजें ट्रिकी है इसमें, स्ट्रेटेजिक चेंज, कंट्रोल, स्ट्रेटेजी ऑडिट.
बीपीआर बेंचमार्किंग आसान है, बट आईसीआई का फेवरेट भी है कंपेरेटिवली, वहां पे क्वेश्चन ज्यादा भी आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक कंट्रोल फर्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम जाएंगे बीपीआर बेंचमार्किंग के ऊपर। टॉकिंग अबाउट द वर्ड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, फॉरगेट अबाउट द वर्ड स्ट्रेटेजी। कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब है भाई सिंपल शब्दों के अंदर, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस आपने कोई भी इंप्लीमेंट किया है उसे रेगुलरली इवैल्यूएट करते जाना, ताकि सर उसमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ एंड उसको इजीली करेक्ट कर पाओ। सो कैन वी से कंट्रोल इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म और अ प्रोसेस बाय विच वी ट्राई टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड वेयर कैन वी मेक चेंजेस, कहां इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल का। तो देखो कंट्रोल एक सिंपल है, एक मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ज्यादा ऐसा बोल सकते हो कंट्रोल एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे मैनेजमेंट फंक्शन का, बिकॉज सब कुछ इंप्लीमेंट करने के बाद में अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ये आपने रेगुलरली इवैल्यूएट नहीं किया, तो आपके गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो देखो इट इज अ फंक्शन विच इज इंटेंडेड टू एंश्योर एंड मेक पॉसिबल दैट वॉट एवर प्लान्ड एक्टिविटीज यू हैव इंप्लीमेंटेड उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और आपके जो प्री डिटरमिन्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उनको आप अचीव कर पा रहे हो। ये आखिरी स्टेप है। आप खुद सोचो ना यार, पूरा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया, फिर भी वो बोल रहा है इवैल्यूएट करना, कंट्रोल करना कि भाई स्ट्रेटजी सही में तुम्हारे डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली एक कंट्रोल एक तरीके का मैकेनिज्म है जहां पर आप एक्चुअल्स को बजटेड या स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो, जिससे आप डेविएशंस को डिटेक्ट करते हो। Does it sound like a standard costing somewhere या analytical procedure from audit point of view? The same way, मतलब कंट्रोल का मतलब होता है हर प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ नॉर्म्स या स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे, एक्चुअल्स को उनसे कंपेयर किया जाएगा, ये समझने के लिए क्या हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खराब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वेरिएंस पॉजिटिव है तो अच्छा बात है, वेरिएंस एडवर्स है या नेगेटिव है तो हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, कहां इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, ये हमको कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो कहना इसे कंट्रोल्स हमें एक्चुअली में वो प्रॉब्लम्स या लूप होल ढूंढने में हेल्प करता है जहां पर हम करेक्टिव चीजों को इनिशिएट कर सकते हैं। देखो इट इज अ मैकेनिज्म फॉर फीडिंग बैक करेक्टिव एंड अडेप्टिव इंफॉर्मेशन, ताकि हम चीजों को या सिस्टम को ठीक तरीके से वापस लगा सकते हैं ताकि वो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो इन्होंने स्ट्रेटेजी के अंदर कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कंट्रोल पढ़ाए। देखो आपका असली जो मेन इंपॉर्टेंट कंट्रोल है ना वो तो स्ट्रेटेजी कंट्रोल ही है, बट वो समझने से पहले उन्होंने 2 कंट्रोल को और डिफाइन किया है। तो उन्होंने बोला एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजी कंट्रोल तो है ही है जो हमें डिस्कस करना है, उसके अलावा भी प्राइमरीली 2 कंट्रोल और होते हैं। एक कहलाता है ऑपरेशनल कंट्रोल, एक कहलाता है मैनेजमेंट कंट्रोल। आई टेल यू ऑनेस्टली गाइस, हमने इतना कंट्रोल पढ़ा है ईआईएस के अंदर, वो इतना डिटेल में है, ये इतना रॉ लेवल का कंट्रोल है ना एक्चुअली के अंदर, यहां पर कंट्रोल वर्ड को जस्टिफाई किया ही नहीं, डेफिनेशन भी ढंग से नहीं दिया मेरे हिसाब से। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंट्रोल इज far more broader term, and trust me you all know this really well because we have discussed lot of chapters in EIS and all around controls and risks. So ये वाला जो पार्ट है ना ये बहुत ही चिल्लर अकॉर्डिंग टू मी, बहुत बीकॉम लेवल का है। तो अपने EIS का अंडरस्टैंडिंग छोड़ देना, एकदम अज्यूम करना तुम्हारा रॉ माइंड है, तुमको कुछ नहीं आता कंट्रोल के बारे में। तो सोचो कंट्रोल का मतलब सर एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां से हम चीजों को कोऑर्डिनेट करके देखते हैं क्या चीजें अच्छी चल रही है खराब चल रही है, इवैल्यूएट करने का जो तरीका है ना वो कंट्रोल है बेसिकली, बिल्कुल सिंपल शब्दों के अंदर। तो इन्होंने बोला एक कंपनी में 3 कंट्रोल होते हैं। एक कहलाता है ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल comes from the word operations. Operations का मतलब क्या? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो ये बोलता है इंडिविजुअली आपके ऑपरेशंस का हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसके लिए जो कंट्रोल लगाया या उसके लिए जो प्रोसेस बनाया वो ऑपरेशनल कंट्रोल कहलाता है। मतलब सुनो, पूरा इन्वेंटरी भी कवर नहीं होगा, इन्वेंटरी का एक पार्ट, बाइंग ऑफ इन्वेंटरी, सेलिंग ऑफ इन्वेंटरी, ओनली वन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू देम इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल कंट्रोल। जब आप पूरे इन्वेंटरी को मैनेज कर रहे हो तो वो इनके हिसाब से ब्रॉडर वर्ड हो गया, वो कवर करता है मैनेजमेंट कंट्रोल को। तो देखो 2 वर्ड्स है इनके हिसाब से। ऑपरेशनल कंट्रोल थोड़ा सा इंक्लूसिव नेचर का नहीं है, इंडिविजुअल नेचर का है, मतलब यहां पर एक इंडिविजुअल इवेंट, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को कवर कर रहे हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल में ये थोड़ा एग्रीगेट बेसिस है, पूरे प्रोसेस को कवर कर रहा है। तो अगर आप बोलोगे एक सिंगल इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन जो है वो ऑपरेशनल कंट्रोल में आएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल कहलाएगा, बट पूरे इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल कहलाएगा। ये इनका थियोरेटिकल तरीका है। गाइस आई टेल यू रियल लाइफ ये कंट्रोल्स का डेफिनेशन बहुत ही बियॉन्ड है, ये वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। वी हैव वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, एग्जाम के हिसाब से भी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट आई फियर इज समटाइम्स ये ऑपरेशनल या मैनेजमेंट कंट्रोल के डेफिनेशन के ऊपर ना
एमसीक्यू आ जाएगा और तुम पता कंफ्यूज क्या हो जाओगे, तुम लिख के आ जाओगे ईएस की कंट्रोल। प्लीज ऐसा मत करना, एसएम में मात्र एक ही कॉन्सेप्ट है, प्लीज गलती मत करना और बहुत ही बीकॉम लेवल है। देखो ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब द फोकस ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल इज ऑन इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शन एज अगेंस्ट, मतलब इट इज नॉट टॉकिंग, मतलब ये अगेंस्ट बोल रहा है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू फोकस ऑन टोटल और मोर एग्रीगेटिव मैनेजमेंट फंक्शन। ये जो टोटल और मोर एग्रीगेटिव है ना, ये काम है मैनेजमेंट कंट्रोल का। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन या ऑपरेशंस पे जो फोकस है वो किसका है, ऑपरेशनल कंट्रोल का। एग्जांपल देखो, procuring specific items for inventory, एक स्पेसिफिक आइटम इज अ मैटर ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल। इन कॉन्ट्रास्ट पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजमेंट कंट्रोल। थियरिटिकल है बहुत बेटा, आई एम टेलिंग यू, रियल लाइफ में हम इसके बहुत बहुत बियॉन्ड जा चुके हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ओल्ड है, आउटडेटेड अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट देखो, what is management control? देखो, when compared with operational, management control is more inclusive and more aggregative। बहुत सारी चीजों को साथ में लेके आता है, मतलब it is going to cover either the entire division, the entire process, entire unit or maybe entire organization। देखो, in the sense of embracing the integrated activities of either a complete department, division or even the entire organization। मतलब individual transaction या event पे फोकस करना कहलाता है operational control, पूरे organization, पूरे division या पूरे unit को कंट्रोल करने प्रोसेस कहलाता है मैनेजमेंट कंट्रोल। थियरिटिकल डेफिनेशन है गाइस, आई अग्री दैट हाँ सर इसका रियल लाइफ में मतलब बहुत बदल चुका है। नाउ वी हैव वेट। सो मैनेजमेंट कंट्रोल के भी बहुत कैटेगरीज होते हैं, रादर मैनेजमेंट कंट्रोल हेडिंग ही नहीं बचा अभी आज की तारीख के अंदर। हमारे ऑडिट फंक्शंस की कैटेगरी होते हैं आज की तारीख में, जान दीजिए। अभी के लिए 2 मिनट स्पेंड कीजिए, रीड अबाउट ऑपरेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ 4 मार्क क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, इसलिए फिर भी आपको आना चाहिए। दोनों समझ में आए तो हम जाएंगे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के ऊपर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स, रीड बोथ ऑफ देम। डन, आगे बढ़े क्या? ओके, लेट्स गो टू द इंपॉर्टेंट वन, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। चलो एक बहुत घटिया एग्जांपल है, बट तुमको अभी जो स्ट्राइक हुआ तो मेरे को बताया तो तुमको मैं, मे नॉट बी दैट रेलेवेंट ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टूडेज दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेक्चर वॉज नॉट प्लान्ड, सो द स्टूडियो लाइट्स यू वुड हैव नोटिस, थोड़ा देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो गया होगा हल्का हल्का इस साइड के अंदर धीरे धीरे, बिकॉज एक साइड का स्टूडियो लाइट उड़ चुका पूरा का पूरा और डिस्चार्ज हो चुका कंप्लीटली। ठीक है, सो आई टुक लॉट ऑफ फाइनल लेक्चर्स टुडे। आज मेरा ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे का फाइनल का लेक्चर था, तो दिस वॉज नॉट प्लान्ड। So I had utilized them and I did not put them on charge during the daytime, and right now it is troubling me. So the variance right now is visible. If you don't make proper plans, if you don't have proper controls in place, आपको negative impact आ सकता है business के ऊपर। तो ये मेरा business नहीं है, but in general, this is not the planned scenario. तो एक कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत एसेंशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन में एट एवरी स्टेज, एंड देयर शुड बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कॉस्टिंग आपको पढ़ाया होगा, जो मैंने ढंग से मेंटेन नहीं किया इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। डू यू गेट माय पॉइंट? बेटा वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, उनका फ्यूचर अच्छा ही रहेगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डू यू गेट माय पॉइंट? विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, बट लेट्स फोकस मोर ऑन अभी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बेटा एग्जाम में आया ना स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, तुम रोएगा, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो तुम छोड़ गया था, मेरे को मालूम है, क्योंकि बच्चा इंडिविजुअली पढ़ता है ना, उसको लगता है कि समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। पढ़ो मेरे साथ में, समझेगा तुमको। लेट्स गो टू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बोलता है लॉजिकली 2 चीजों पर फोकस करता है। इफ आई टॉक अबाउट एक स्ट्रेटेजी जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल करने का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन करना। तो अगर मैं बोलता हूं एक स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते वक्त मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई जो मैंने सोच समझ करके स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट किया था, क्या वैसा इंप्लीमेंट हुआ?
या इन अदर वर्ड्स जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए थे एक स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के बाद में, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए? देखो जरा ध्यान से, तो कैन वी से क्या स्ट्रेटजी उस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ जैसे प्लान किया था, या इन अदर शब्दों में आप बोल सकते हो क्या जो रिजल्ट मिले आपको स्ट्रेटजी से, क्या वो आपके इंटेंडेड रिजल्ट से मैच होते हैं क्या? यही चीज आपको स्ट्रेटजी कंट्रोल्स में देखना होता है। मतलब स्ट्रेटजी कंट्रोल जब आप लगा रहे हो यही देखना है द इंप्लीमेंटेशन शुड हैपन एज यू हैड ओरिजिनली प्लान्ड, एंड द आउटकम जो आपको मिलना चाहिए कि भाई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने का जो आउटकम आने वाला है वो वैसा आ रहा है क्या जो हमने ओरिजिनली एक्सपेक्ट किया था। तो कैन बी से देयर कैन बी समटाइम्स गैप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो यस सर, इस चीज को ठीक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के बहुत सारे टाइप्स बना के दिए हैं। पहला वाला टाइप है प्रीमाइस कंट्रोल, फिर एक आएगा हमारे पास में इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल ही, फिर एक आएगा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स आने वाले हैं। लेट्स डिस्कस ऑल दीज कंट्रोल्स इन डिटेल। इंडिविजुअली किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है या जनरल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के जो टाइप्स है उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमाइस कंट्रोल। What do you mean by the word premise? Premise is nothing but assumptions. जब आप एक स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हो, डेवलप करते हो, हमेशा स्ट्रेटेजी कोई ना कोई assumptions के ऊपर रहेगा। These can be my, economic assumptions. It can be my, general business environmental assumptions, or it can be my internal existing business assumptions. कोई ना कोई assumptions के बेसिस के ऊपर आपने स्ट्रेटेजी बनाया होगा। अब आपके वो assumptions जो है ना, उनको ही टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली वी शुड हैव अ मैकेनिज्म बाय विच वी कीप इवैल्यूएटिंग कि जिन अजम्पशंस में स्ट्रेटजी बनाया था क्या वो अजम्पशंस आज भी लॉजिकली अप्लाई करते हैं या उनमें सिग्निफिकेंट बदलाव आ चुका है। ये चीज के कंट्रोल को कहलाता है प्रीमाइस कंट्रोल। देखो, अ स्ट्रेटजी इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस और प्रीमाइसेस about the complex and turbulent organization environment over a period of time। ये जो प्रीमाइस है they may not remain valid, मतलब जो assumptions है वो सेम नहीं रहेंगे। तो प्रीमाइस कंट्रोल एक ऐसा टूल है, डेफिनेशन है, एक ऐसा टूल है सर जिससे आप सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस तरीके से मॉनिटर कर पाओगे पूरे एनवायरनमेंट को टू वेरीफाई कि जो हमारे प्रीमाइसेस थे वो वैलिड हैं और क्या ढंग से काम कर रहे हैं। अब देखो, सारे असम्पशंस को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको ना आउट ऑफ ऑल द प्रीमाइसेस जो इंपॉर्टेंट प्रीमाइसेस हैं, जो सर सबसे सिग्निफिकेंट है, सबसे रिस्की हैं, एक एग्जांपल बताऊं क्या? रिमेंबर की सक्सेस फैक्टर्स ऑफ एन इंडस्ट्री। तो वो की सक्सेस फैक्टर्स इनडायरेक्टली मेरे लिए असम्पशंस भी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वालिटी इज द असम्पशन, या इन्फ्लेशन इज द असम्पशन, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट कैन बी एन असम्पशन। तो ये जो हमारे कोर फैक्टर्स होते हैं उनको एटलीस्ट हमने रेगुलरली टेस्ट करते रहना चाहिए। देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इट कैन बी योर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इट कैन बी योर इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स। और देखो, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर असम्पशन को टेस्ट करो। देखो, इट इज नीदर फीजिबल नॉट डिजायरेबल टू कंट्रोल ऑल प्रीमाइसेस, रादर यू शुड आइडेंटिफाई ऑल द इंपॉर्टेंट वंस एंड ट्राई टू इवैल्यूएट और कंट्रोल ओनली द इंपॉर्टेंट प्रीमाइसेस और important assumptions. This kind of control is called as premise control. This is the most important one also from exam point of view. देखो बेटा, मेरे हिसाब से MCQ में ऐसे क्वेश्चंस ही बनते हैं। वो एक सिचुएशन बना के देगा और बोलेगा आउट ऑफ द फोर विच ऑफ द, मतलब इस सिचुएशन से कौन सा वाला स्ट्रेटेजी कंट्रोल रिलेट कर पाओगे आप। वो चार ऑप्शन दे देगा, इनमें से आपको देखना पड़ेगा वो assumption से रिलेटेड कंट्रोल पूछ रहा है या अलग अलग सिचुएशन वाला कंट्रोल पूछ रहा है, या आपको डेफिनेशन समझ में आएगा तो आपको MCQ भी आएगा। अभी गुड, spend 1 minute, read this premise control once again quickly. पढ़ा प्रीमाइस कंट्रोल आप लोगों ने? अरे पढ़ा क्या भाई? आगे बढ़े क्या? लेट्स गो टू नंबर 2, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस। स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस का मतलब क्या है? इन्होंने क्या बोला, इन जनरल, नाउ प्रीमाइस कंट्रोल वाज अ स्पेसिफिक कंट्रोल कि आप सिर्फ असम्पशंस को इवैल्यूएट कर रहे हो। स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस इज लाइक अ जनरल सिचुएशन। सर्विलियंस का मतलब क्या होता है? इन जनरल एनालिसिस करते रहना, स्कैनिंग करते रहना। तो ये ना एक बहुत ही जनरल कंट्रोल है। आप ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर रहे हो, मतलब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे हो तब, या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, या ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन, ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस। इन जनरल स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस का मतलब है एक ऊपर से ओवरऑल इंफॉर्मेशन निकालते रहो, क्या कोई भी सिग्निफिकेंट नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या जिसकी वजह से हमको लगता है चीजें गलत तरीके से आ सकती है। सो सर, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक कंट्रोल, दिस इज अ जनरल कंट्रोल। सी, contrary to premise control, strategic surveillance is unfocused. It is general monitoring of various sources of information to uncover
एनी अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन जिसका इंपैक्ट हमारे स्ट्रेटेजी के ऊपर आ सकता है। तो इन जनरल ग्लोबल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, लोकल लेवल का न्यूज हो गया, रेगुलरली उन सब चीजों को स्कैन करते हो, एनालाइज करते हो और समझते जाओ क्या उसमें से किसी चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है हमारे स्ट्रेटेजी पे या नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। देखो, इट इन्वॉल्व्स कैजुअल एनवायरमेंटल ब्राउजिंग, बहुत डिफिकल्ट चीज है। देखो, रीडिंग फाइनेंशियल एंड अदर न्यूज़पेपर्स, business magazines, meetings, conferences, discussions at clubs or parties and so on can help you in strategic surveillance. This surveillance is nothing but getting all important general information regarding your business strategies. So sir, ये थोड़ा loose form of strategic control है, but हाँ, it is capable of sometimes finding out really interesting information which can be helpful in business strategies. तो देखो, पहला कंट्रोल ना बहुत स्पेसिफिक कंट्रोल था, वो था प्रीमाइज कंट्रोल, कि जिन अजम्पशंस के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाया ना उन अजम्पशंस को ही टेस्ट करो, वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरा वाला इन जनरल, फॉर्मुलेशन से लेके इंप्लीमेंटेशन तक। तो स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस जो है ना वो इन जनरल है, मतलब पूरे टाइम पर काम में आ सकता है कभी भी। दिस इज लाइक अ ओवरऑल कंट्रोल, मोर ऑफ अ जनरल इन generic in nature. Do you understand the second word that is called as strategic surveillance? Third वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल. नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंट्रोल, ये बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में जहां पर बहुत ही ज्यादा यू कैन से सिग्निफिकेंटली नेगेटिव आने वाले इवेंट्स, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक हो जाता है, नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, या फॉर एग्जांपल ग्लोबल पैंडेमिक लाइक कोविड-19. सो इन दीज सिचुएशंस वेयर वी बिलीव कुछ तो ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है जिसका बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट आ सकता है हमारे पूरे स्ट्रेटेजी के ऊपर. तो शायद हमें पूरे स्ट्रेटेजी को ही पूरा स्टार्टिंग से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो हमने लास्ट ईयर के एंडिंग में प्लानिंग किया था फॉर 2020, आई थिंक वी आर नॉट गोइंग एनी वे क्लोजर टू व्हाट वी हैड ओरिजिनली प्लान्ड. मे बी वी नीड टू रिवाइज आवर एग्जिस्टिंग प्लान्स ऑल टुगेदर. मे बी वी नीड टू राइट ऑफ द एंटायर ईयर ऑल टुगेदर, फाइनेंशियल ईयर, in terms of our revenues and all. This can be called as special alert control. देखो, at times unexpected events may force organization to reconsider their entire strategy. Examples can be sudden changes in government, natural calamities, terrorist attack, unexpected mergers and acquisitions by competitors, industrial disasters, or any such event which may trigger an immediate or intense review of the entire strategy. This is more like a crisis situation where as a management you should need to understand that yes, इस सिचुएशन में शायद हमें पूरा का पूरा नया एक इमरजेंसी प्लान ही एक्टिवेट करना पड़ सकता है. दिस कैन बी कॉल्ड एज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल. इफ यू आस्क मी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एंड ऑल, जो थोड़े एकदम एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए होते हैं, उनको आपको शायद एक्टिवेट करना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग. दिस काइंड ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड एज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल फॉर स्पेशल सिचुएशंस. I hope you understand what is premise control, what is strategic surveillance and what is your special alert control. Quickly spend 5 minutes, तीनों को वापस पढ़ो, फिर हम जाएंगे लास्ट वाले पे, that is called as implementation control. Quickly spend 2-3 minutes, जल्दी से पढ़ो इन तीनों को. बेटा strategic control important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको क्लियरली बोल रहा हूं मैं. पढ़ा क्या बेटा आपने? अरे पढ़ा क्या भाई? समझा आपको? देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे 3 कंट्रोल है. पहला वाला ऑपरेशनल कंट्रोल, वो एक इंडिविजुअल टास्क के लिए, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए, इवेंट के लिए एप्लीकेबल है. तो उससे थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे जाओगे तो मैनेजमेंट कंट्रोल आएगा, जो शायद पूरे प्रोसेस को, पूरे डिपार्टमेंट को या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर सकता है. देन स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रेटेजी देयर इज अ कंट्रोल कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो तुमने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी को प्लान किया था क्या वैसा इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इंप्लीमेंटेशन वाला टेस्टिंग हम करने वाले हैं. एंड दूसरा चीज, जो आपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करोगे स्ट्रेटेजी से,
जो इंटेंडेड बेनिफिट आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाले हैं क्या, या वो हो रहे हैं क्या, ये आपको चेक करना पड़ेगा अंडर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो सब पहला वाला है कि भाई जो अजम्पशंस में स्ट्रेटेजी बनाया था उन अजम्पशंस को टेस्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमाइज कंट्रोल। दूसरा वाला वो बोलता है सर हो सकता है एक जनरल स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस आपको हमेशा लगेगा, दैट इन जनरल आपको एक मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री में जो भी नया हो रहा है उससे आप अपडेटेड रहेंगे। तीसरा वाला वो बोलता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। इन स्पेसिफिक सिचुएशंस यू मे नीड स्पेसिफिक ट्रिगर्ड प्लान्स दैट कैन बी कॉल्ड एज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। लास्ट वाला जो है वो एक इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जो बात करता है वो कहलाएगा इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। यहां पर अगर आप मुझे पूछेंगे ना दो चीजें बताइए, एक बोला है मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थर्स्ट, मतलब क्या है? देखो आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका जो इंप्लीमेंटेशन है वो ऐसा होगा, यू हैड प्लान्ड दैट योर इंप्लीमेंटेशन शुड हैपन लाइक दिस। अब या तो इंप्लीमेंटेशन बेटर हो रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे, या खराब भी हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे, तो मे बी आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि इंप्लीमेंटेशन जैसा होना चाहिए था क्या उसी तरीके से हो रहा है क्या। इसको और बेटर समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, माइलस्टोन्स बनाने चाहिए। मतलब क्या, दैट मे बी आपने बोला था यहां तक हमें एक एक्स लेवल अचीव करना है, यहां तक हमें वाई लेवल अचीव करना है, यहां तक हमें जेड लेवल अचीव करना है। क्या आपने वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जो माइलस्टोन्स है उनको रिव्यू करके देखना चाहिए कि वो आपने अचीव किए हैं या नहीं किए। ये दोनों कंट्रोल मेरे लिए कहलाएंगे इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। देखो मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थर्स्ट विल हेल्प द मैनेजर इन डिटरमाइनिंग क्या हमारा स्ट्रेटेजी ओवरऑल वैसे प्रोग्रेस कर रहा है क्या जैसे हम चाहते थे, या कुछ एडजस्टमेंट करने का जरूरत है। दूसरा चीज माइलस्टोन रिव्यूज, मतलब जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थे इंप्लीमेंट करने के लिए उनको आप टाइम के टर्म्स के अंदर या इवेंट्स के टर्म के अंदर या रिसोर्स एलोकेशन के टर्म्स के अंदर डिवाइड कर दो। फिर देखो शॉर्ट टर्म में क्या हमने वो अचीव किया, या इतने रिसोर्सेज से ये अचीव किया या नहीं किया। इट इज नॉर्मली अ कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजी। इससे पता चलेगा क्या हमें कुछ बदलाव लाने का जरूरत है एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में, या स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है जैसा हमने ओरिजिनली प्लान किया था। ये कहलाता है मेरे लिए इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। देखो जरा ध्यान से, मैनेजर्स इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी बाय कन्वर्टिंग मेजर प्लान्स इनटू एक्शंस। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स असेसिंग क्या हमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी में, क्योंकि शायद जिस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे वो उस तरीके से नहीं अनफोल्ड हुआ होगा जो हमने प्लान किया था। तो सर ये ना ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं है, ऑपरेशनल कंट्रोल एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए होता है। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट वंस अगेन, जहां पर पूरे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन को इवैल्यूएट किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए दैट भाई इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में दो चीजें हैं, एक ओवरऑल स्ट्रेटेजिक थर्स्ट, मतलब जिस तरीके से स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, मूव कर रहा है, वो ठीक लग रहा है क्या, एंड रेगुलर माइलस्टोन्स बना लो जिसको रिव्यू करके आपको समझ में आ जाएगा दैट ओके मे बी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो ही जाएगा। माइलस्टोन कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स और इवेंट्स। ये कहलाता है मेरे लिए इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इन चारों में प्रीमाइज कंट्रोल एंड इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई वुड से द एंटायर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आपको आने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड व्हाई डू वी नीड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ये दोनों जो कारण है वो पता होने चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल चीज है भाई, जो स्ट्रेटेजी जैसे प्लान किया था वैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड जो ऑब्जेक्टिव तुमने प्लान किया था क्या वो अचीव होने वाला है या नहीं होने वाला है, यही चेक करना है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर। क्विकली पढ़ो, आई थिंक द एंटायर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज ओवर। क्विकली फिनिश इट ऑफ। और देखो डायग्राम नोटिस करोगे आप, प्रीमाइज कंट्रोल पूरा देखो दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन। सर्विलेंस देखो पूरा ओवरऑल चलते रहेगा, सर्विलेंस इज जनरल, कभी भी आ सकता है। प्रीमाइज कंट्रोल जिसके बेसिस के ऊपर पूरा फॉर्मुलेशन हुआ है तो वो पूरा करेक्ट होना चाहिए आखिरी तक। पर देखो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल ये कहां पर आ रहे हैं, देखो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन में बात कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन करते वक्त क्या कुछ स्पेशल सिचुएशन आ गई है क्या, यहां तक आपने एक्सपेक्टेशन किया था, इसके बियॉन्ड चीजें मतलब ये स्पेशल अलर्ट सिचुएशन है। और यहां तक वाला कंट्रोल जो है नॉर्मल, वो मेरे लिए नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल कराएगा, बिकॉज वो मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसके अंदर चीजें अगर है तो सब कंट्रोल में है, उसके ऊपर गई चीजें मतलब वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड जा चुकी है। एक डायग्रामेटिक तरीके से समझाने का ट्राई किया उसने। फटाफट से पढ़ लो बेटा, फिर हम जाएंगे बीपीआर एंड बेंचमार्किंग की तरफ क्विकली। डन।
कैन वी गो नेक्स्ट? आगे चलेंगे भाई। चलो पहले एक डिफिकल्ट चीज पढ़ते हैं, बेंचमार्किंग। बहुत डिफिकल्ट है। पहले बेंचमार्किंग खत्म करते हैं, फिर बीपीआर पे आएंगे। बेंचमार्क इज वेरी रिस्की, बी वेरी केयरफुल। मैंने आपको याद है क्या, वो घटिया, एक बहुत ही डिफिकल्ट, घटिया नहीं बोलूंगा, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, एक बहुत डिफिकल्ट स्टोरी दिखाया था बेंचमार्किंग का। डू यू गाइस रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ बेंचमार्किंग? भूल गए? अरे यार कैसे बच्चे हो यार, कितना मेहनत करना पड़ता है ढूंढने के लिए, तुमको मालूम है क्या? बहुत पुराना स्टोरी है, ढूंढना पड़ेगा। May 18 से पहले, May 18 से पहले, चैप्टर नंबर 7। ये देखो, याद है क्या तुमको? जिसको याद नहीं है जरा पढ़ के देखो स्टोरी। 2 men were passing through a jungle. They saw a tiger at a distance. One of them immediately started running away. No use, the other claimed. We cannot outrun him. We are sure to be killed. The other person replied, it need to outrun you, not him. पढ़ो जरा वापस एक बार, समझता है क्या तुमको स्टोरी? पढ़ो पढ़ो। याद आ गया क्या? धमाल मूवी का सीन है। ओ माय गॉड। ठीक है, जाना दो प्लीज, फॉरगिव मी, लेट्स कम बैक। सो इन सिंपल टर्म्स, बेंचमार्किंग फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, इस वर्ड का मतलब क्या आपको समझाता हूं। यस, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक रिसेंटली आया था। सो तुम फिर बोलोगे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तुमको बोला ना इस चैप्टर में सब इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में सब पूछा जा चुका है और कुछ भी आ सकता है वापस से। तो बेंचमार्किंग का सिंपल शब्दों के अंदर मतलब क्या है? अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस जहां आपको लगता है you are not the best in the industry. Let's say for example, maybe it comes to marketing, maybe it comes to research and development, maybe it comes to packaging, maybe it comes to after sales services. कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होगा जहां पर स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है सिग्निफिकेंटली, और आपको लगता है वहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। मे बी शायद वो फ्यूचर में आपको कोर कॉम्पिटेंसी बन सकता है। तो बेंचमार्किंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप आपके इंडस्ट्री में लीडर जो है उस प्रोसेस में या उस प्रैक्टिस में, उसको आप एज अ स्टैंडर्ड सेट करोगे और अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंप्रूव करोगे। ये प्रोसेस कहलाता है बेंचमार्किंग। बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि हमें कहां इंप्रूवमेंट का जरूरत है, फिर वो इंप्रूवमेंट करने के लिए हमें किसी को एज अ स्टैंडर्ड, एज अ बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। वो जो बेंचमार्क है वो सर इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, इंडस्ट्री लीडर होना चाहिए उस चीज के अंदर, तब जाके हम अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। तो इनडायरेक्टली it is the approach of setting goals and measuring the productivity based on बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। मतलब आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल इंडस्ट्री में जो लीडर्स है उनसे कंपेयर करके देखोगे कि आपको कहां इंप्रूव करने का जरूरत है। देखो, इट हेल्प्स यू इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस बाय लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस जो आपने अचीव करने चाहिए। देखो, इट इन्वॉल्व्स रेगुलरली कंपेयरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस, फिर गैप्स आइडेंटिफाई करोगे और उनको फिल करने का ट्राई करोगे। देखो, एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, बेस्ट प्रोसेसेस आर नॉट मियरली कॉपीड। ऑब्वियसली कॉपी करने में क्या फायदा होने वाला है? कॉपी करके तुम और वो सेम ही लेवल पे रहेगा, तुम उससे बेटर नहीं रहेगा। तो आपको बहुत इनोवेटिव तरीके से उसे कॉपी भी करना है और अपने आप को 2 कदम आगे भी लेके जाना है। देखो, एफर्ट्स आर मेड to learn, improve and evolve them to suit the best possible way in your organization circumstances। तो सर ये ना सिंपल जो बेस्ट अच्छा है उसको कॉपी कर लो ऐसा नहीं होता है, उससे कंपेयर करो, आइडेंटिफाई करो वो क्या सही कर रहा है, आप क्या गलत कर रहे हो, फिर आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो उससे भी ज्यादा अच्छा, ये बेंचमार्किंग कहलाएगा। तो बेंचमार्किंग सर किन किन एरियाज में अप्लाई कर सकते हो? देखो, देयर आर सर्टेन एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, सो फर्म कैन अप्लाई बेंचमार्किंग फॉर देयर मेंटेनेंस ऑपरेशंस,
for their product development, product distribution, after sales services, plant utilization levels. HR, I think according to me, a lot of conventional businesses lead significant benchmarking in their human resource management or maybe total manufacturing, cost optimization consulting. So ये सब कुछ ना अच्छी तरीके में कंसल्टिंग के थ्रू होता है कि आप थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को हायर करते हो, वो आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि आप कहाँ लैक कर रहे हो और फिर उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो. सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ बेंचमार्किंग प्रोसेस? नंबर 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना व्हाई डू यू नीड बेंचमार्किंग, मतलब किस एरिया में आपको बेंचमार्किंग की जरूरत है. मे बी आपको इंडस्ट्री से हिंट मिलेगा दैट मे बी इन सर्टेन एरियाज यू आर लैकिंग एंड योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग रियली ग्रेट. तो आपको वो हिंट्स पिक करने पड़ेंगे या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंटरनली कहां पर इंप्रूवमेंट का जरूरत है. फिर सर आपको अपना जो खुद का एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो समझना बहुत जरूरी है. क्लियरली अंडरस्टैंड योर एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि उसके बिना आप कंपेरिजन नहीं कर पाओगे अच्छे से और अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे. अच्छा, खुद को समझने के बाद में, खुद के एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझने के बाद में आपके इंडस्ट्री में बेस्ट कौन है या पूरे ग्लोबल लेवल पे बेस्ट कौन है. देखो, आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रोसेसेस अक्रॉस इंडस्ट्री, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बेंचमार्क, आपका जो स्टैंडर्ड है वो अगर चैलेंजिंग नहीं हुआ ना तो आप में इंप्रूवमेंट भी ग्रेट नहीं आएगा. इसीलिए बेस्ट पॉसिबल प्रोसेस ढूंढना जरूरी है. फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को उस बेस्ट प्रोसेस से कंपेयर करो और आइडेंटिफाई करो क्या सिग्निफिकेंट गैप्स है. देखो, कंपेयर योर एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस विद दैट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसेस एंड एक रिपोर्ट बनाओ कि आपको क्या क्या स्टेप्स लगाने की जरूरत है ताकि आप इस गैप को ब्रिज कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली जो इंप्लीमेंट किया है उस इंप्लीमेंटेशन के बाद में इवैल्यूएशन करना चाहिए कि जो आपने स्टेप्स लगाए हैं क्या उससे वो गैप खत्म हुआ है, क्या आप बेंचमार्क बन गए हो इस इंडस्ट्री में या एटलीस्ट एट पार आ गए हो. दैट इज योर इवैल्यूएशन पार्ट. दैट मींस क्या ये गैप ब्रिज हुआ है या नहीं हुआ है. ये सारे स्टेप्स है मेरे बेंचमार्किंग के. बहुत ही लॉजिकल, बहुत सिंपल है. ऑब्वियसली ये बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस है. इट्स नॉट लाइक वंस इन अ व्हाइल. ये रेगुलरली आपको अलग अलग एरियाज में बेंचमार्किंग लगाते ही रहना पड़ेगा अगर आप इंडस्ट्री में लीड करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना चाहते हो. देन बेंचमार्किंग इज अ essential process. Quickly spend 5 minutes, read all these steps. They're very, very simple and self-explanatory also. पढ़ा क्या भाई? Do you understand benchmarking now? If you're done, come to page number 163. We will discuss in detail what is BPR, Business Process Reengineering. Are you guys there? पक्का? ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन. तो अगला हेडिंग देखो क्या बोलता है. बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, कोर बिजनेस प्रोसेस क्या होता है. तो बिल्कुल बेसिक चीज है. वी ऑल नो दैट a collection of interrelated activities to achieve certain objectives can be called as a business process. For example, purchase process, sales process, HR process. So basically हर एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए जब आप कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज या एक्टिविटीज को मर्ज करते हो वो हमारे लिए बिजनेस प्रोसेस कहलाता है. देखो, इट इज अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क एंड एक्टिविटीज towards achieving a goal or objective. It can be called as a business process. For example, developing a new product, कस्टमर ऑर्डर को प्रोसेस करना, बिल पेमेंट सिस्टम बनाना, ये सब कुछ हमारे लिए बिजनेस प्रोसेस कहलाता है. बट देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे बिजनेस प्रोसेस होते हैं जिनके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो. इनडायरेक्टली कोर बिजनेस एरियाज आप बोल सकते हो उनको. सो देखो, द बिजनेस प्रोसेस विच आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर द सक्सेस इन सर्वाइवल ऑफ एंटरप्राइज कैन बी कॉल्ड एज कोर बिजनेस प्रोसेस. वो डिपेंड करेगा हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस के अंदर अलग अलग रहता है. देखो, एग्जाम्पल दिया है, इंश्योरेंस के अंदर में भी
प्रीमियम कैसे रिसीव होगा, सेलिंग प्राइसेस क्या रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के अंदर लोन्स कैसे दिया जाएगा, एडवांसेस कैसे दिया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। एफएमसीजी में ब्रांड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अलग अलग सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल्स दिए बीकॉम लेवल के कि भाई कोर बिजनेस प्रोसेसेस हर इंडस्ट्री में अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल है। हमें फोकस कहां करना है, बीपीआर कॉन्सेप्ट पे। This is a very old concept. This is not like something which you have started using currently. And I believe in 2008, 9, 10, 11, 12, those 4-5 years, what are the golden years जब BPR बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से इंप्लीमेंट करना शुरू हुआ था। अब बहुत एक बेसिक सा चीज बन गया है। This is not something extremely new now. People understand this, people know this really well. But 10 years back, this was absolutely new. So what is BPR? Look at the word. Business प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसके ऊपर ना मॉड्यूल में बहुत कंटेंट है, बहुत। मैंने उसको बहुत अच्छे से समराइज करने का ट्राई किया है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर लिखने का, सब बता दूंगा। तो पहले सुन, 10 मिनट के लिए अच्छे से सुनना मेरा बात। व्हाट रियली बीपीआर मींस, तो ये बोलता है, लुक एट द वर्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मतलब क्या, जो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है उसको री इंजीनियर करना है, मतलब उसको रीडिजाइन करना है। और अब ना ये कुछ छोटा मोटा रीडिजाइनिंग नहीं है, वी आर लुकिंग एट रैडिकल रीडिजाइनिंग। मतलब मे बी एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है ना उसको पूरा खत्म कर दो, उसको ब्रेक करके साइड में कर दो। वापस सोचो कि ये जो सेम बिजनेस प्रोसेस है, अगर मैं इसको वापस से डिजाइन करूं तो कैसा डिजाइन करूंगा कंप्लीटली। क्योंकि बीपीआर में आप रैडिकल तरीके से पूरे प्रोसेस को खत्म करके नया तरीके से डिजाइन करना चाहते हो। आप सिग्निफिकेंट गेन्स लेके आना चाहते हो, मतलब आप छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं चाहते हो बिजनेस के अंदर, आप चाहते हो मेरा बिजनेस ना सिग्निफिकेंट तरीके से जंप करे। अगर आप मुझे सिंपल एग्जांपल्स पूछोगे, जब हमारे मोबाइल एप्स बनाए गए थे, चाहे आप ओला का, उबर का, बुक माई शो का बात करोगे, 10 years back, 12 years back, when they came into this industry, उन मोबाइल एप्स को यूज करना अपने आप में एक टास्क था। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ओला के अंदर कैब बुक करना विल टेक मोर देन हाफ एन आवर टू बुक अ कैब, बिकॉज टू अंडरस्टैंड देयर वेबसाइट, ओला कैब पहले वेबसाइट से बुक करता था फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उस वेबसाइट पे जाना, नेविगेट करना, इंटरनेट स्पीड, now you literally book that in seconds. Do you get my point? Rather half an hour में तुम्हारा ट्रिप खत्म जाता है पूरा का पूरा। तो बेसिकली बीपीआर इन अदर वर्ड्स ऑल्सो मीन्स आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस में जो एकदम रिडंडेंट यूजलेस स्टेप्स हैं उनको खत्म कर देना, और जो लॉजिकल स्टेप्स हैं उनको ही रखना। या वापस से अगर बोलना चाहो तो यार हम वापस से क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप को कि भाई हम ये जो प्रोसेस है ये ऐसा फॉलो क्यों कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू, हाउ एग्जैक्टली वी वांट टू अचीव द सेम प्रोसेस वंस अगेन। दैट इज कॉल्ड एज बीपीआर। बीपीआर इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रीडिजाइनिंग, इट कैन बी रीमॉडलिंग ऑल टुगेदर। वी आर नॉट लुकिंग फॉर स्मॉलर गेन्स, वी आर लुकिंग फॉर क्वांटम गेन्स सिग्निफिकेंटली। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। OLX का ऐप वगैरह हो गया, ओला, उबर, बुक माई शो, दे ऑल आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ बीपीआर। रादर एवरी ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोज थ्रू बीपीआर, बिकॉज आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस को सिग्निफिकेंट तरीके से बदलना ही पड़ता है। अब जरा इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं उसको पिक करना, बहुत लिखा है कंटेंट, जस्ट फाइंड द राइट वर्ड सो दैट यू कैन राइट दैट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, इट रेफर्स टू एनालिसिस एंड रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस ईदर विद इन और बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर सर रैडिकल अप्रोच रहेगा, मतलब टोटल डीकंस्ट्रक्शन, पूरा ब्रेक कर देना एंड रीथिंकिंग ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस एंटायरली। यहां पर हम क्वांटम गेन्स चाहते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट गेन्स चाहते हैं परफॉर्मेंस के अंदर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी, आउटपुट। सर हम यहां पर इनडायरेक्टली चाहते हैं सिंप्लीफाई करना या स्ट्रीमलाइन करना। स्ट्रीमलाइन मतलब जो हैपजार्ड चीजें थी ना, अलग अलग कचरा जो स्टेप्स थे उन्हें हटा करके लॉजिकल स्टेप्स लेकर के आना। स्ट्रीमलाइन करना एक प्रोसेस मतलब बाय एलिमिनेटिंग ऑल रिडंडेंट एंड नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, जब भी आप कभी बिजनेस के अंदर मोबाइल ऐप बनाओगे आपको समझ में आएगा कैसे नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स को निकाला जाए। इससे ड्रास्टिकली आपके नंबर ऑफ स्टेज खत्म हो जाएंगे, स्पीड अप हो जाएगा, वर्क फ्लो इंप्रूव होगा और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको रेवोल्यूशनरी तरीके से कॉस्ट बेनिफिट देना शुरू करेगा। इट इन अदर वर्ड्स इट ऑल्सो मीन्स स्टार्टिंग ऑल ओवर, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। इट मीन्स फंडामेंटल रीथिंकिंग, मतलब वापस से क्वेश्चन पूछो जो हम प्रोसेस में कर रहे हैं ना। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस लाइक why do we do what we do, why do we do it the way we do, basically asking the basic questions altogether. Do we need to change maybe the entire business altogether? देखो, कोई प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं चाहिए,
फ्री सेट ऑफ माइंड चाहिए, सर यहाँ पर रेडिकल रीडिजाइनिंग होने वाला है, छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए हमको, आप कंप्लीटली एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्कार्ड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा करोगे, कभी कभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रखा भी जाएगा ताकि आप कंपेयर करके देख पाओगे कि जो नया स्ट्रक्चर है वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, बट ये आपका ब्रॉडर लेवल पे एक्सपेक्टेशन है। तो कैन आई से दिस इज मोर लाइक अ बिजनेस री इन्वेंशन, नॉट जस्ट बिजनेस इंप्रूवमेंट। छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, एनहांसमेंट नहीं चाहिए, एक री इन्वेंशन किया जा रहा है सिग्निफिकेंट तरीके से, ये प्रोसेस कहलाता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इतना कंटेंट लिखा है, इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट अगर आपने लिखा ना, आपका काम हो जाएगा। वापस से पढ़ लो एक बार, इतना चीजें हैं, सबका मतलब घूम फिर करके सेम ही है। बीपीआर को वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। पढ़ो एक बार, उड़ा दो फटाफट से। पढ़ा आपने? अरे पढ़ा क्या भाई? फिर देखो, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, जनरल क्वेश्चन आया बीपीआर के ऊपर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीआर, तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट है लिखने के लिए। तो देयर आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि ऐसे कौन कौन से नॉर्मल एरियाज है जहां पर बीपीआर सूटेबल रहेगा, मतलब इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर दोस प्रोसेसेस वेयर यू वुड वांट टू अप्लाई री इंजीनियरिंग। अगर आप पूछोगे तो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहला वाला वर्ड मार्क करना, प्रोसेसेस विच आर रिलेटिंग टू development and delivery of products and services. That means we're talking about the डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर, या आप अपने प्रोडक्ट को कैसे आप डिलीवर करते हो उस प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहते हो। मे बी कस्टमर का जो प्रीमियम फीलिंग है ऑफ गेटिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस, उसको आप एनहांस करना चाहते हो, या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है उसको ही कंप्लीटली रिवैम्प करना चाहते हो। तो मे बी हो सकता है प्रोडक्ट को डेवलप करना या डिलीवर करना, उसके अंदर आप बदलाव लेकर आए। तो बेसिकली कौन कौन से एरियाज में आप बीपीआर लगा सकते हो उसके एग्जाम्पल दे रहा है। पहला वाला ये। दूसरा वाला, हाउ डू यू इंटरफेस विद द कस्टमर, मतलब आप कस्टमर से इंटरैक्ट कैसे करते हो। मार्केटिंग वाला पार्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट हो गया, ऑर्डर फुलफिलमेंट सर्विसेज वाला पार्ट हो गया। तो इनडायरेक्टली अगर आप मुझे पूछोगे ना, ये दोनों चीजें मेजॉरिटी चीजें कवर कर लेती है। दिस कवर्स development of a product, it also includes the delivery of the product, it includes the advertising, marketing, तो all important parts पहले 2 में आ चुके होते हैं। तो उन दोनों में सबसे कॉमन है बीपीआर अप्लाई करना। थर्ड वाला मैं बोलूंगा काफी रेयर है और आसानी से मिलेगा भी नहीं देखने के लिए। थर्ड वाला बोल रहा है यू वांट बीपीआर इन द मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब आप एज अ एंटायर टाटा ग्रुप फॉर एग्जांपल, और मे बी एज अ एंटायर बिरला ग्रुप अपने अलग अलग एंटिटीज को कैसे मैनेज करते हो। मतलब हाउ डू यू डिजाइन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, हाउ डू यू डिजाइन स्ट्रेटजीज ऑल टुगेदर, कैसे आप बजट बनाते हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हो। मतलब हम जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस है ना, उनके अंदर बीपीआर लगाना चाहते हैं। मतलब कैसे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट किए जाएंगे, कैसे हम परफॉर्मेंसेस को मेजर करते हैं हमारे अलग अलग बिजनेसेस के, कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप करते हैं। बेसिकली थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल वाला प्रोसेस आ गया जहां पर हम थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे प्ले कर रहे हैं। बट सर इन सिंपल टर्म्स ऑलमोस्ट किसी भी एरिया में लगा सकते हो। थियोरेटिकली आंसर लिखते हो तो आपको अनफॉर्चुनेटली 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। रियल लाइफ में इफ यू आस्क मी, इट कैन बी अप्लाइड इन एनी एरिया। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, सर्विस कैसे प्रोवाइड करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में हो सकता है, मार्केटिंग के बारे में हो सकता है, हम कैसे चीजों को हैंडल करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर कैसे मैनेज होगा, हर चीज के ऊपर बीपीआर लगाया जा सकता है। एक बार स्पेंड करके तीनों पॉइंट को पढ़ लो। बॉटम लाइन में तीनों सब कुछ कवर कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली तेरे को ये 3 चीजें ऐसे डिफाइन करनी पड़ेगी ताकि तेरा आंसर मैच हो जाए सजेस्टेड आंसर से। बट दिस कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस वेयर बीपीआर कैन बी अप्लाइड। पढ़ो फटाफट से। पढ़ा? Now, another question in exam which has been specifically asked, what are the steps involved in implementing a BPR? पहला पॉइंट देखो, सबसे सिंपल, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क। एग्जैक्टली आप इस बीपीआर से क्या अचीव करना चाहते हो, मतलब व्हाट रियली यू वांट टू अचीव, व्हाई डू यू नीड अ बीपीआर, व्हाई का आंसर सबसे पहला चीज है। दूसरा चीज, identify the customers and determine their needs. Since we are doing fundamental rethinking, go to the basics.
कि आपके कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, कस्टमर का नीड्स क्या है, कस्टमर का वांट्स क्या है, वो समझो सबसे पहले, मतलब अंडरस्टैंड द कस्टमर्स फ्रेमवर्क डायरेक्टली। तो पहला वाला चीज, व्हाई डू वी नीड ए बीपीआर। नंबर 2 इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। थर्ड वाला स्टेप शायद कभी कभी नहीं आता है, पर कभी कभी आता भी है। देखो थर्ड वाला क्या बोलता है, स्टडिंग दी एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है उसको वापस से स्टडी करो। अगर एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट रहा तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा वो पॉइंट नंबर 2 एंड 3 को दिमाग में जरूर रखेगा, बिकॉज पहला चीज तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा व्हाई वी नीड ए बीपीआर, फिर एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को हायर करेगा, वो कस्टमर को समझेगा और एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझना चाहेगा। एग्जिस्टिंग प्रोसेस को क्यों समझना है, ताकि पता चलेगा क्या नहीं करना है या कैसे इंप्रूव करना है, वो डिसाइड करना ईजी होगा। मे नॉट बी सुटेबल इन ऑल केसेस, बिकॉज कहीं कहीं बीपीआर ये बोलता है कि खुद से एग्जिस्टिंग वाले को भूल जाओ, नए तरीके से शुरुआत करो। तो हाँ, कभी कभी शायद नया सोचना स्टार्टिंग से सही रहेगा, पर कभी कभी शायद एग्जिस्टिंग से नया सोचना बेटर रहेगा। सो इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव। फोर्थ से सबसे लॉजिकल है, फॉर्म्यूलेट अ रीडिजाइन प्रोसेस प्लान। ये डिवाइड करना, एक रीडिजाइन का जो प्रोसेस प्लान है उसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिक से स्टेप रहेंगे, पहले व्हाई, तो डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर रियली वांट्स। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस वंस अगेन सो दैट वी नो हाउ टू वी रियली इंप्रूव दिस। फोर्थ वन इज डिजाइन अ न्यू रीडिजाइंड प्लान, कैसे आप नए तरीके से प्रोसेस को अप्लाई करने वाले हो और फिर उसको इंप्लीमेंट करोगे। आई वुड से स्टेप नंबर 6 भी आता है जो आपकी बुक्स में नहीं है, आप उसको इवैल्यूएट भी करोगे, क्या वो रीडिजाइन प्लान इंप्लीमेंट सही से हो रहा है, क्या जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो भी आपको चेक करना पड़ता है। दैट विल बी योर पॉइंट नंबर 6। आइडियली आना चाहिए, आपकी बुक्स के अंदर नहीं दिया है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व बहुत सिंपल है, बेंचमार्किंग या बीपीआर दोनों में से किसी के भी स्टेप्स इन्वॉल्व नॉर्मली पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। सो यस, इट्स एन इंपॉर्टेंट एरिया। क्विकली स्पेंड 2 मिनट्स, फटाफट से पढ़ लो, और आपको सिर्फ एक लाइन लिखने के अंदर जो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और लॉजिकल है अपने आप में। फटाफट से पढ़ो। Done? Now you'll be shocked. Can you see role of information technology in BPR? मैं बोलूंगा सिंपल शब्द में, फॉरगेट अबाउट रोल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही बीपीआर है। मतलब एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रीडिजाइन करना, मतलब मान के चलो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही एंटर होने वाला है। चाहे आप बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल ले लो यार, अटेंडेंस रिकॉर्ड करने का सिस्टम, फिजिकल रजिस्टर से मूव कर रहे हो आप स्वाइप कार्ड सिस्टम के ऊपर। तो मेजॉरिटी बिजनेस प्रोसेस जो है ना, उनमें बीपीआर इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जनरल एडवांटेजेस, एक नॉर्मल आईटी की वजह से क्या होता है, हमारा सेम चीज को प्रोसेस करने का जो टाइम है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो पाएंगे। फिर सर आप इंडायरेक्टली जो हमारे रिलेशनशिप से लोगों के बीच में वो रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे। याद है आर ग्लास स्ट्रक्चर, the number of people required at a middle level will shrink significantly. So sir, what is the impact of IT systems? Compression of time, overcoming restrictions of geography and distance. मतलब बेसिकली कोई किधर भी बैठ के काम कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर फोर्सफुली फाइनली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। 5 साल तक आर्ग्यू किया वर्क फ्रॉम में काम नहीं होता, काम नहीं होता, काम नहीं होता। अभी सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? द एंटायर इकोनॉमी इज वर्किंग और नॉट? यस, यू विल आर्ग्यू द जीडीपी फॉल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इन जनरल majority industries are still flourishing, they're still doing, rather IT industry is doing pretty good comparatively. Their results are not bad at all according to me, rather it looked like they were almost unaffected if you ask me. Next, restructuring of relationship, आर ग्लास स्ट्रक्चर इज द परफेक्ट एग्जांपल कि कैसे शायद मिडिल लेवल का रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगा। तो देखो आईटी इनिशिएटिव्स का फायदा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईटी? सर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से अच्छा आउटपुट मिलेगा। मैनेजमेंट जो है वो आपका इफेक्टिव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इफेक्टिव मैनेजमेंट,
productive will become efficient, and most importantly innovation will come by either improved product और services, जिसकी वजह से आपका reputation improve होगा. ये basic 3 advantages हैं जिसका significant value मिलेगा आपको by implementing information technology when you are embedding with your BPR. that is BPR लगाते वक्त उसको integrate कर दो information technology को, ताकि आप radical तरीके से काम कर पाओ. एग्जाम में specifically what is the role of IT in BPR पे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है in revised syllabus only. मैं आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट छोटा सा है, लिमिटेड कंटेंट है, आईसीआई चुन चुन के वो पूछता है जो तू छोड़ सकता है. बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. दैट इज व्हाई डोंट लीव एनीथिंग. ट्राई टू कवर एवरी सिंगल एरिया इन एक्सट्रीम डिटेल. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अरे समझा क्या भाई? कम टू प्रॉब्लम्स इन बीपीआर. कम टू पेज नंबर 167. प्रॉब्लम्स क्या है बीपीआर के? बहुत सिंपल है. नंबर 1 करेज. बिल्कुल लॉजिकल चीज है. इट्स नॉट अ इजी थिंग. बीपीआर लगाना मतलब आपको एग्जिस्टिंग सब कुछ भूलना पड़ेगा, सब कुछ नए तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. इट्स गोइंग टू रिक्वायर हेल लॉट ऑफ करेज. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी डिसीजन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, बीपीआर लगाया तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग जो हायरार्की है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो सिग्निफिकेंटली बदलने वाला है. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की लग जाएगी. देखो, योर एग्जिस्टिंग हायरार्कीज एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर कैन हैव सिग्निफिकेंट repercussions and things will change. Lot of people will resist towards this. It's going to be a very costly and time consuming process. There is going to be a downtime. Downtime means वो प्रोसेस कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा. जब आपको उससे पैसा नहीं मिलने वाला, वो टाइम बहुत कॉस्टली पड़ सकता है, और सेटिंग टारगेट बहुत मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल डिजाइनिंग अ बीपीआर हम ये अचीव करना चाहते हैं. बाय द टाइम यू अचीव इट, बाय द टाइम यू अप्लाई बीपीआर, शायद मे बी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में ट्रेंड ही बदल जाएगा सिग्निफिकेंटली. तो सेटिंग टारगेट्स इज वेरी ट्रिकी इन टर्म्स ऑफ बीपीआर. इट्स नॉट अ इजी जॉब फॉर रियली बिगर ऑर्गेनाइजेशंस. दिस मेक्स सेंस. फॉर रियली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, आई बिलीव changing to new business itself is a better BPR rather than doing the existing business, according to me. That was a sarcastic way. Don't try that normally. But yeah, for bigger organization, yes, it does definitely make sense that you need to apply BPR. Read the problems in BPR. These can be asked. If they're asked, trust me, you will be lucky, because this is a BCom level answer. If they ask you problems in BPR, quickly spend 2 minutes. पढ़ा क्या? लास्ट पार्ट पे आ जाओ फटाफट से. कम टू पेज नंबर 166. हाँ, इस चीज को मार्क करना. देखो क्या बोलते हैं. The basic principles that differentiate re-engineering from any other drive on improving organizational efficiency can be summarized as follows. मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है कि यार why BPR, why re-engineering, why not maybe normal business improvements और बिजनेस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को री-एनहांस कर दो, थोड़ा चेंजेस कर दो, मतलब माइनर इंप्रूवमेंट्स लेके आ जाओ. उसको तुम बीपीआर से सही तरीके से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? व्हाई यू बिलीव बीपीआर इज बेटर देन द नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स? ये जो लॉजिक है ना, ये यहां पे एक्सप्लेन किया है, और बेसिकली जो ऊपर पढ़ा था ना उसका ही कंटेंट है, बट कुछ चीजों को निकाल के दिया. देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है. द कोर ऑफ री इंजीनियरिंग लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस थिंकिंग, विच इज एक्चुअली वेरी लॉजिकल. अगर आप कंटिन्यूअसली जो सोच रहे हो वही सोचते जाओगे तो आप अलग तरीके से थर्ड पार्टी की तरफ से सोच ही नहीं पाओगे. इसीलिए पता क्या होता है, बीपीआर लगाने के लिए क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग जो एंटिटी के लोग हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे. इसके लिए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को लेके आओ जो एक अलग लेंस से चीजों को देखेगा. डिसकंटिन्यूअस थिंकिंग का मतलब जो आप आज तक करते आए थे वो सोचना नहीं है. आपको वापस फंडामेंटली सोचना है कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं यार, why there can be a better way to do the same business way. so वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वो एक एसेंशियल पार्ट है. अगर आप छोटा मोटा इंप्रूवमेंट करते हो ना तो आप क्या सोचते हो, ये ऐसा ही है, इसमें क्या चेंज कर दूं. बीपीआर मतलब इसको तोड़ दो, वापस से पूरा प्रोसेस बनाओ, तब शायद आप एक स्क्रैच से शुरुआत करोगे तो शायद उससे आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट सिग्निफिकेंट मिलेगा. इट एम्स एट अचीविंग एक्सीलेंस
and a breakthrough in performance by redesigning the process entirely and radically. So radical redesign था ना, वही मेरा पॉइंट नंबर 1 है. फिर देखो क्या बोलता है. BPR approach recognizes that most of existing rules and procedures are based on certain assumptions which can be related to technology, people and goals of the. तो BPR बिल्कुल लॉजिकल. वो क्या बोलता है, आज तक जो हम कर रहे थे ना, वो कोई ना कोई ऐसे लॉजिकल assumptions के बेसिस पर रहेगा. शायद उनमें से कुछ assumptions अब वैलिड ही नहीं होंगे यार. प्रीमाइस कंट्रोल सेम, तो मे बी हम existing assumptions को भूल जाते हैं ना. Why not look at this from a fresh start altogether? मे बी इन existing assumptions के अंदर वैलिडिटी खत्म हो चुकी होगी. नया सोचूंगा, नया शुरुआत करूंगा, तो शायद बेटर तरीके से आगे बढ़ सकता हूं. ये एक लॉजिकल अप्रोच है. तो ये पुराने जो ओल्ड अजम्पशंस है उनको कंप्लीटली इग्नोर करता है. देखो, दीज अजम्पशंस मे नॉट बी वैलिड एनीमोर. दैट इज व्हाई बीपीआर कैन बी मोर रेडिकल इन नेचर. थर्ड वन देखो, थर्ड और फोर्थ दोनों कनेक्टेड है. देखो, व्हाइल रीइंजीनियरिंग स्टार्ट्स विद the process, it does not end there. The fundamental and radical change, logical चीज. ये क्या बोल रहा है, एक प्रोसेस में रीइंजीनियरिंग किया, मतलब प्रोसेस नया बनाया, खत्म हो गया. फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग करने का नया तरीका खत्म हो गया. नहीं, मार्केटिंग करने का तरीका बदलेगा तो हमको नया पोटेंशियल समझ में आएगा. उसके वजह से शायद हम नए प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन करना शुरू कर देंगे. तो मे बी वी रियलाइज आवर मार्केटिंग इज बैड, सो वी रीडिजाइन आवर मार्केटिंग प्रोसीजर. And after the new marketing procedure, we realize that there is a huge demand in the market which is extremely untouched. तो शायद हम हमारे existing product का related कोई नया product launch करना शुरू करेंगे, नए services provide करना शुरू करेंगे, better packaging करना शुरू करेंगे, शायद एक नए target market को देखना शुरू करेंगे. तो सर, इसका implication ना बहुत सारे other parts of organization में आता है, almost every part. So it is viewed as a process from cross-functional perspective, not just impacting one function but all the functions across organization. So sir, it is not just the changing process. The change in process is always accompanied by a whole lot of changes in other areas. इसका impact बहुत सारे areas पे आएगा. मतलब collectively एक पूरे business के अंदर significant transformation आ सकता है. तो सर, अगर आप मुझे पूछोगे तो पहला word discontinuous thinking important है, radical redesign से आता है. दूसरा चीज, एग्जिस्टिंग अजम्पशंस को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस थिंकिंग से कनेक्टेड ही है. बट दूसरा पॉइंट बोल रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में आया तो ऐसे पॉइंट लिखने पड़ेंगे. यही ऐसा एरिया है जहां तक थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. बाकी बीपीआर का कोई भी क्वेश्चन आया ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा. आई विल शो यू सम क्वेश्चंस राइट नाउ, डोंट वरी अबाउट दिस. जो हमने डिस्कस किया ना अभी तक, उसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं तुमको मैं, आपको समझ में आएगा. बहुत आसान है लिखना, बट यस, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट एरिया. सो लेट्स गो एंड सी सम क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा मैं जो बात कर रहा हूं उसके ऊपर. See, explain the concept and nature of BPR. नॉर्मल BPR पे क्वेश्चन पूछा इन जनरल, तो बिल्कुल शॉर्ट नोट लिखा. देखो, बिल्कुल बेसिक सा. मैं बोलता हूं इससे तुम बहुत बेटर कंटेंट लिख सकते हो. ये तो लिखो ही लिखो, एडिशनल 4-5 पॉइंट और लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं. तुम्हारा BPR का आंसर पक्का ठीक रहेगा. एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है BPR के ऊपर, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन कि BPR होता क्या है. रादर उन्होंने जस्टिस किया ही नहीं है. सिर्फ बीपीआर का जो मॉड्यूल में शुरुआत है ना, उसका सिर्फ 2 पैराग्राफ उठा के डाल दिया. अकॉर्डिंग टू मी इससे बहुत बेटर आंसर जो हमने पॉइंट्स में लिखा तुम वो लिख सकते हो. आंसर मैच होगा, ट्रस्ट में, बिकॉज यहाँ सजेस्टेड आंसर काफी कम दिया है. 5 मार्क के लिए कंटेंट बड़ा रहेगा. दे नॉट डूइंग जस्टिस विद द सजेस्टेड आंसर. ठीक है, 1 क्वेश्चन. और कोई क्वेश्चन आया था क्या इस अटेम्प्ट के अंदर? एक ही था. लेट्स गो टू मे 18 पेपर. See, strategy audit हम पढ़ेंगे, that is pending. Explain different types of strategic control in brief. देखो, strategic control का मतलब क्या होता है? 4 types: premise, surveillance, special alert and implementation control. सिंपल सा 5 मार्क का क्वेश्चन. आपको बोला ना, May 18 के बाद से November 19 तक ऑलमोस्ट हर एरिया पे क्वेश्चन पूछा गया है. देन May 19 में जो क्वेश्चन था वो तुमको अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने. डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ये हम पढ़ेंगे. अभी तक एक क्वेश्चन हमने जो पढ़ा उसके ऊपर देखो, व्हाट इज बेंचमार्किंग, वेरियस स्टेप्स इन बेंचमार्किंग, 7 मार्क्स के लिए. तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. तो ऐसा कोई भी अगली बार बीपीआर के स्टेप्स पे क्वेश्चन आ सकता है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से लाइक दीज आर वेरी वेरी कॉमन एरियाज वेयर दे कीप आस्किंग दीज कॉमन क्वेश्चंस. फिर नवंबर 18, हाँ, कम है. रीड क्वेश्चन बेटा, तुमको दिखाई दिया मैंने स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है, व्हाट आर द प्रोसेस. तो सारा सारा आंसर आ गया. अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ आईटी सिस्टम ऑन बीपीआर एंड लिस्ट 3 एरियाज व्हिच प्रोवाइड्स बिजनेस वैल्यूज. देखो, स्पेसिफिक आंसर क्वेश्चन पूछा है, याद है क्या? आईटी का इंपैक्ट सर
कंप्रेशन ऑफ टाइम, ओवरकमिंग रेस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप, और सर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इनोवेशन इंप्रूव होगा। इतना ही आंसर है। Specific question पूछ लिया। I told you there can be specific questions. They have asked these category of questions. That is why I'm telling you, be prepared for the worst when it comes to this particular subject. Strategic management सबसे आसान है। मैं तुमको बोलता हूँ literally, I think I need to take one more lecture and then the entire strategic management will be over. We need to discuss strategy audit in detail. We need to discuss formulation, implementation, दोनों में difference क्या होता है, what is backward linkage, forward linkage, उतना पार्ट बाकी है इस चैप्टर के अंदर। एक लेक्चर लगेगा उसके लिए अलग से पूरा डिटेल में डिस्कस करने के लिए, बिकॉज formulation, implementation will take time. It is not an easy part. And strategy audit will also take time. So we'll discuss in one more lecture, don't worry about it. But now I challenge you, you open any paper, May 18 से लेकर के नवंबर 19 तक, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन तुमको मॉड्यूल में जो हमने डिस्कस किया उसमें से मिलेगा। एंड यू वुड हैव रियलाइज इट टुक मी लेस देन 20 hours or 25 hours to almost teach the entire subject once again to you. I don't know whether you realize this or not. Almost the entire strategic management we have covered once again. Like literally 90 to 95% is covered once again. So if you devote some time from your side, this is a subject which can help you to get 40 directly, guys. मतलब इधर ही 40, 100% पॉसिबल है। थोड़ा मेहनत कर, दिमाग लगा, मतलब सब कुछ मालूम है, इस बुक के अंदर 150 पेज, इधर से क्वेश्चन आएगा। कितना डिफिकल्ट होगा, लैंग्वेज भी कितना सिंपल है यार, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है इस सब्जेक्ट का, ये सबसे आसान लैंग्वेज, और कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है यार मेरे हिसाब से। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर, थोड़ा सिंसियर बन, सब्जेक्ट को इग्नोर मत कर, ये ही अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है पास कराने के लिए। EIS से जो आएगा सब मान के चल टुवर्ड्स एग्जामिनेशन वाले मार्क्स है। दिस इटसेल्फ विल हेल्प यू टू गेट 40, 100%। पेपर तेरे सामने सारे के सारे यार, May 18, नवंबर 18, सारे के सारे तो ओपन कर ले, एक भी क्वेश्चन तेरे को इसके बाद नहीं मिलेगा। चैलेंज यू, बिकॉज ICAI ने सब्जेक्ट को रखा है अनफॉर्चुनेटली कि तू पास हो जाए सब्जेक्ट में, बिकॉज दे न्यू रियली वेल किसी के लिए भी सिर्फ ITO सिर्फ EIS में 400 पेज पढ़ के पास होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से 100% पास होता है आदमी। एंड दिस हैज बीन सेम सिंस द डे आई रोट माई इंटरमीडिएट एग्जाम। सो I hope you understand what I have been, forcing again and again. Practice some answers, guys. I'm telling you, write these answers. कुछ भी नहीं है, थोड़ा मेमोरी टेक्निक की कोई जरूरत नहीं होती। अगर तुमने ढंग से आंसर लिखना शुरू किया ना, तेरे को ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। हेडिंग्स याद रखने का और क्या है, उसके बाद अंदर कंटेंट थोड़ा लॉजिकल है, पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, ओके, that's all for today. We'll continue our discussion. One more lecture will be required to finish off the entire strategic management. VI बेटा वोडाफोन आइडिया अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा रीब्रांडिंग करके थोड़ा सा मार्केट में दिखाने का ट्राई कर रहा है कि वो जिंदा है अकॉर्डिंग टू मी। फिलहाल दिस VI स्ट्रेटजी इज नथिंग बट मैं जिंदा हूं ये बताने का ट्राई कर रहा है। जब तक मेरे को लगता है कोई मेजर इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर चेंज, बड़ा पैसा विद अ बिग ब्रांड नेम डजंट एंटर, मतलब Amazon वेरिजोन का जो न्यूज चल रहा है, जब तक वो कंफर्मेशन नहीं आता है या कोई भी और थर्ड पार्टी बड़ा ब्रांड नेम एंटर नहीं करता है, कोई गारंटी नहीं है सर्वाइवल का। 100% ट्राई कर रहा है वो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स गोइंग टू रिक्वायर अ ह्यूज ब्रांड नेम। एंड आई टेल यू व्हाट इज ट्रबलिंग, आपने न्यूज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट अदरवाइज रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अगेन इन टॉक्स विथ फेसबुक एंड KKR फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन रिलायंस रिटेल। इफ द रिलायंस रिटेल के अंदर और पैसा आना शुरू हो गया, एडअप होना शुरू हो गया, Reliance will become such a giant, it will become very very difficult to deal with this. But Vodafone Idea का survival का chances है definitely after this AGR decision. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। The management looks little bit inquisitive to do something new. इसीलिए शायद मार्केट में एयरटेल का प्राइस आपने नोटिस किया होगा फॉल होना शुरू हो गया। एयरटेल ने आज 500 का लेवल्स ब्रेक कर दिया बिकॉज लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है दैट मे बी आइडिया वोडाफोन शायद सर्वाइव कर जाएगा एटलीस्ट आने वाले 2 साल तक। अगर वो सर्वाइव कर जाएगा तो जितना प्रीमियम एयरटेल के अंदर था स्टॉक के वैल्यूएशन में वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। बट आई एम स्टिल गोइंग टू से एयरटेल इज अ बेटर बेट इन अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट एनी डाउट बिकॉज यू नो दैट वो फॉर श्योर 10 साल तक रहने वाला है। आइडिया वोडाफोन के लिए आई कैन नॉट गारंटी दैट राइट नाउ। So yes, Idea Vodafone is like an option. Either it can become 0 or it can become 12 to सीधा directly 40 rupees. So there can be 3-4 times it can become multi-bagger. There is no doubt about that. It can become 0 also. You can become directly bagger also in the stock specifically. Happiest Mind IPO, it's a good IPO according to me because Mindtree के जो founders है उनका ही entity है, अच्छा subscription भी है almost. We wanted to bet big on this but इतना ज़्यादा रिटेल सब्सक्रिप्शन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फर्स्ट डे को इतना सिग्निफिकेंट रिटेल सब्सक्रिप्शन था। आई बिलीव
अलॉटमेंट मिलना काफी मुश्किल है, बट येस इफ यू वांट टू प्ले यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, इट्स अ गुड आईपीओ इन माय जजमेंट. डिस्क्लेमर अगेन. वाइल रिकॉर्डिंग EIS लेक्चर्स, यस कहीं कहीं पॉज किया, कुछ वीडियोस हैं बेटा, उनमें से मेजोरिटी वीडियोस अगर आप थोड़े ग्रुप पे एक्टिव हो तो मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, शायद तुमने वो देखे नहीं होंगे मेरे को लगता है, बट इफ देयर आर फ्यू मोर लेफ्ट डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल पोस्ट ऑन द यू नो क्या बोलते हैं ग्रुप. मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट किए होंगे. Root Mobile can be very interesting according to me. Not tomorrow, I don't know about the dates, but yes, Root Mobile can be very interesting. I have to read more about them in detail. VMware वीडियो डाला है बेटा मैंने. फ्यूचर रिटेल इज फॉलिंग बिकॉज बेटा ऑलरेडी जिस प्राइस पे खरीदा है और जो स्टॉक्स के वैल्यूएशन है वो काफी कंपैरेटिवली डाइवर्टेड है पूरे के पूरे, एंड देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी कि एग्जैक्टली कितना पैसा इंडिविजुअल लोगों को मिलने वाला है. देयर इज लॉट ऑफ डेट इन्वॉल्व, बहुत डेट है उसके अंदर ऑलरेडी. ओके, थैंक यू गाइस, आई होप वी हैड अ गुड डिस्कशन टुडे, ऑल्दो इट वाज नॉट रियली प्लान्ड, बट आई होप आपको मजा आया होगा. सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट.